Today is the last date for CAP registration for BMS, BBA, BCA and BBM students out there. Now there's a lot of confusion among the students जिनका grievance आ रहा है even after the form is accepted. So I'll clear all your confusion. And secondly, the most important thing that students are raising the question, क्या मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में register नहीं किया है तो cancel हो जाएंगे form? How important is that? Also, if you have completed your registration, what next? I'll explain this video. So guys, make sure that you watch the video till the end. Hi guys, welcome back to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, so please do subscribe. So the first thing, students who have the grievance, जिनका acceptance आ ही नहीं रहा है, please rectify all your documents. अगर basic आपका गलत होगा तो obviously आपका acceptance नहीं आएगा. So get it rectified. If it is not happening online, go to the offline scrutiny center as soon as possible so that they can suggest you कि क्या कर सकते हो. एक तो है कि पूरा ही एक्सेप्ट नहीं हो रहा है. इन दैट केस यू विल हैव टू फिक्स इट गाइस. कोई भी रेजोल्यूशन नहीं है. द रीजन इज yesterday when we had an online webinar, we helped a lot of students to fix their mistakes yesterday. But now as we can see, a lot of students are struggling and we have less time. That's why I'm saying कि offline आप चले जाओ if the CT cell is not picking up the call. Second case is that you have got the SMS and a mail that your CAP registration is successful. Okay, it is accepted by the CT cell. But when you log in your portal, you see there's a discrepancy. Now, it can be with your minority form, with your linguistic form, with your minority, any of the form, इसमें problem आया होगा. Now, what is the solution for that? One is you call up the CT cell. Either the form will get unlocked today, जो कि CT cell ने बोला था, और दूसरी चीज ये है कि आपको grievance window में जब open होगा ना तब आप वो fix कर पाओगे, because lot of students have submitted their receipt and everything. तो ये grievance window में भी possible है if CT cell confirms that. So please make sure that you make a call and take a calculated decision. So these are the two cases कि यार पहला कि मुझे मतलब मेरा एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है तो आपको करना ही पड़ेगा कुछ भी करके, क्योंकि मेजर मिस्टेक है. दूसरा एक्सेप्ट हो गया है बट कुछ फॉर्म्स में ग्रीवेंस है, वो हमारे जो है ग्रीवेंस विंडो में भी फिक्स हो पाएंगे. द रीजन इज योर फॉर्म इज एक्सेप्टेड, यू गोना बी अ पार्ट ऑफ द कैप राउंड, सो यू आर सेफ. नाउ जो बच्चे अगर कैप नहीं रजिस्टर कर पाए आज, मतलब टाइम चला गया, अब क्या होगा? क्या आप एडमिशन प्रोसेस के पार्ट हो पाओगे? यस, इंडीड हो पाओगे, बट आफ्टर द कैप प्रोसेस, मतलब जो कैप राउंड 1, 2, 3, 4 खत्म हो जाएंगे, जो स्पेशल राउंड होगा ना, इंस्टीट्यूशनल राउंड, उसमें आप पार्ट ले पाओगे. बट जब तक जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं उनकी सीट खत्म हो जाती है. सो गाइज, मेक श्योर दैट यू कंप्लीट योर कैप रजिस्ट्रेशन. नाउ स्टूडेंट्स दोज हु आर नॉट फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज अ पेज, प्लीज फॉलो इट, बिकॉज वो इंस्टेंट स्टोरीज वगैरह वहां पे मैं डाल देती हूँ. दूसरी चीज, ऑन 23rd of August, प्लीज मार्क योर कैलेंडर. दिस इज अ बारकोड, स्कैन कर लो. ये फ्री सेमिनार है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन मुंबई. आप लोग रजिस्टर करो, ऑनलाइन ऑफलाइन वहां पे डाल देना. ऑनलाइन बहुत मुश्किल है कर पाना, बट जो OMS कैंडिडेट है उनके लिए आई विल ट्राई कि वो मतलब यूट्यूब पे लाइव चला जाए, सो यू कैन ऑल्सो वॉच इट, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट देयर प्रेफरेंस लिस्ट, व्हाट टू डू नेक्स्ट, 23rd को वी आर डूइंग एन ऑफलाइन सेमिनार एट VSIT वडाला. सो रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी बिकॉज फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आपको सीट मिलने वाली है. लिमिटेड सीट्स we have and it's completely free of cost. It is completely done to guide parents and students कि किस तरीके से अभी आपका next step in admission लेना है according to your ranking, because जब तक हमारे पास एक ranking आ जाएगी, then that is a perfect time that you will be able to make your preference, जो आपकी जो CAP preference list होती है ना, that is the right time, because उसके बाद आएगा आपका final merit list, then it will be easier for you to fill in your preference college. Now talking about the cases, अगर आपका minority certificate हो गया या caste certificate हो गया, linguistic certificate हो गया, वो accept नहीं हुआ, कोई भी reservation, उस केस में क्या होगा? दो चीजें, आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, आप एडमिशन राउंड से बाहर भी नहीं होगे, आप सिर्फ जो आप माइनॉरिटी लगा रहे थे ना वहां से ओपन में शिफ्ट हो जाओगे. अब बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रूफ करना चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र बॉर्न है, डोमिसाइल लगाना चाहते हैं, बर्थ प्लेस महाराष्ट्र प्रूफ करना चाहते हैं ताकि उन्हें 85% रिजर्वेशन मिल जाए. अगर वो रिजेक्ट होता है तो क्या होगा? आपका एडमिशन फिर भी कैंसिल नहीं होगा, आप OMS कैटेगरी में चले जाओगे. अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट प्रूफ नहीं कर पाए तो आप OMS में चले जाओगे और दूसरे केस में आप ओपन में चले जाओगे. सो जो भी ऑनलाइन मीडियम से आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, आई विल जस्ट सजेस्ट यू गाइज टू not follow
follow random information. आप प्लीज डॉक्यूमेंट खुद से पढ़ लीजिए और ट्रस्टेड सोर्स को ही फॉलो करिए. ओके, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज अदरवाइज आपके करियर का सवाल है, आप रैंडम इंफॉर्मेशन पे बिलीव करोगे तो कंफ्यूज ही रहोगे. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट मुंबई यूनिवर्सिटी पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन. अभी कहीं पे तो मैंने सुना है, जो बच्चे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि मैम बोल रहे हैं कि कैंसिल हो जाएगा, पार्ट 1 इज मैंडेटरी, क्या करना चाहिए, फॉर्म ओपन रहेगा क्या, मैंने नहीं किया. तो गाइज लेट मी क्लियर दिस कंफ्यूजन एज वेल फॉर यू. पार्ट 1 मुंबई यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है आपके लिए ओपन रहेगा. जो इतने भी सीईटी के बच्चे होते हैं, चाहे फिर वो इंजीनियरिंग के हो, फार्मा के हो, लॉ के हो, या फिर बीएमएस बीबीए के ही क्यों ना हो, आप लोगों के लिए आपको कॉलेज हेल्प करती है. अगर आपने पार्ट 1 रजिस्टर किया है तो बहुत अच्छी बात है. अगर पार्ट 1 रजिस्टर नहीं किया है ना, तो कॉलेज आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं आपको एडमिशन नहीं दूंगा. सो प्लीज डू नॉट गेट पैनिक और क्रिएट पैनिक फ्रॉम द फॉल्स इन्फॉर्मेशन दैट इज बीन शेयर्ड ऑन द सोशल मीडिया. इट इज क्लियरली इंस्ट्रक्टेड. सीईटी का जो एडमिशन है वो एक बार डीटी की तरफ से, एक बार सीईटी के पोर्टल की तरफ से आपका कंफर्म हो जाता है. कॉलेजेस आपको हेल्प कर देते हैं एनरोल कराने के लिए, बिकॉज बीएमएस का तो वहां पे कॉलेजेस लिस्टिंग में आएंगे भी नहीं. तो आपका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 फॉर्म दोनों ही कॉलेजेस आपको हेल्प कर देता है और फॉर्म्स ओपन होते हैं. आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, ओपन है कर सकते हो तो भी अच्छी बात है, और नहीं किया तो एडमिशन होने के बाद भी आप कर सकते हो. कॉलेज विल हेल्प यू. गाइस, मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स who are struggling with the CET admission, and I'm soon coming up with a list of colleges according to the percentile. So stay tuned for that. And yes, guys, don't forget to follow us on Instagram, as I said, to get instant update. And I have started with a new page called as Mumbai Colleges for all the fun content. You can join us there as well to get all the insights of what's happening in the college, about the fairs, the college life, and the fun videos too. I hope, guys, the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share, and subscribe.